بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہمارا ٹاپک ہے کولائڈس. اس سے پہلے ہم ٹائپس آف سولوشن کے بارے میں ڈیٹیل ٹاپک ان کا انٹروڈکشن کر چکے ہیں اور وہ ان کی ویڈیو بنا چکے ہیں. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کولائڈ. تو سب سے پہلے کولائڈ کی ہسٹری کی طرف جاتے ہیں کہ کولائڈس ہے کیا. تو the name collide was for the first time introduced by a scientist Gram. سب سے پہلے کولائڈ کا نام گرام نے تجویز کیا تھا. اصل میں کولائڈ ورڈ 2 گریک ورڈز کا کمبینیشن ہے، 2 یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے، جس میں ایک ہے کولا جس کا معنی ہے گلو، جو کہ ایک سٹکی میٹیریل ہوتا ہے جس کے ذریعے ووڈ یا لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں. اور آئڈز یا آئڈس کا مطلب ہے لائک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کولائڈ مینز گلو لائک. تو یہ گلو لائک ایک میٹیریل ہوتا ہے، سولوشن اور سسپینشن سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے. اس کے علاوہ کولائڈ میں 2 بیسک میڈیمز ہوتے ہیں. جس طرح سولوشن میں 2 بیسک میڈیم تھے، کمپوننٹس تھے. جو لیسر پارٹ آف سولوشن ہے ہم اس کو سولوٹ بولتے ہیں، جو گریٹر پارٹ آف سولوشن ہے ہم اسے سالوینٹ بولتے ہیں. اس طرح کولائڈ میں 2 میڈیم ہے، ایک کو کہتے ہیں ڈسپرسڈ میڈیم، بکھرا ہوا، پھیلا ہوا، سکیٹرڈ میڈیم، اور دوسرے کو ہم ڈسپرشن میڈیم، بکھیرنے والا میڈیم یا واسطہ بولتے ہیں. سو ایک ہوتا ہے ڈسپرسڈ میڈیم، جس طرح لائک سولوٹ اینڈ سولوشن، جس طرح سولوشن میں سولوٹ ہوتا ہے، اور دوسرے کو ڈسپرشن میڈیم کہتے ہیں جس طرح سالوینٹ ہوتا ہے سولوشن میں. سولوشن کے حصوں کو ہم کہتے ہیں سولوٹ اور سالوینٹ. یہاں پر سولوٹ کی جگہ ہم ڈسپرس میڈیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور سالوینٹ کی جگہ ڈسپرشن میڈیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سولوشن جو ہے وہ ہوموجینس مکسچر ہے اور کولائڈ ہیٹروجینس ہے. اگر ہم یہاں پر الفاظ سولوٹ اور سالوینٹ استعمال کریں تو اس کے مکس اپ سے تو پھر ہوموجینس مکسچر بنتا ہے، اس کو تو سولوشن بولتے ہیں. ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کولائڈس کی. تو پارٹیکلز کا مطلب ہمارا ہوگا، یہاں پر پارٹیکل لفظ بار بار آئے گا، اس کا بنیادی مطلب ہمارا ہوگا ڈسپرس میڈیم. ذرا اس ڈائیگرام پر غور کریں. یہاں پر میں نے ایک بیکر لیا ہے، اس بیکر میں میں نے ایک لیکوڈ لیا ہے، یہ ہے ایک لیکوڈ. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو سرکل، بلیک سرکل نظر آ رہے ہیں، یہ لیکوڈ والے ذرات ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ڈسپرشن میڈیم. اس میں ہم نے دوسرے ذرات ڈالے ہیں. یہ ذرات سالڈ بھی ہو سکتے ہیں، لیکوڈ بھی ہو سکتے ہیں اور گیسز بھی ہو سکتے ہیں. اس کو ہم بولتے ہیں ڈسپرشن میڈیم. چونکہ لیکوڈ مالیکیولز ہمیشہ مسلسل مستقل ٹیڑھی حرکت میں ہوتے ہیں، تو یہ ان ریڈ کلر ذرات کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور اس کو بکھیرتے ہیں. تو یہ جو بلیک کلر والے لیکوڈ مالیکیول ہے یہ ڈسپرشن میڈیم ہو گیا، اور جن ذرات کو بکھیرا جاتا ہے، منتشر کیا جاتا ہے، اس کو ڈسپرسڈ میڈیم کا نام دیا جاتا ہے. یہ تو بیسک انٹروڈکشن ہو گیا. اب آتے ہیں ڈیفینیشن اور پراپرٹیز کی طرف. تو بیسیکلی کولائڈس اٹ از اے ہیٹروجینیس مکسچر آف 2 or more than 2 سبسٹانسز. سولوشن میں ہم کہتے تھے کہ یہ ایک ہوموجینیس مکسچر ہے، اور یہاں پر ہم بولتے ہیں کہ اٹ از اے ہیٹروجینیس مکسچر. تو ایک فرق تو ظاہر ہو گیا ڈیفینیشن سے. اب آتے ہیں کولائڈس کی پراپرٹیز کی طرف. سب سے پہلی پراپرٹی کولائڈس، دیز آر ہیٹروجینیس مکسچر. کولائڈز ہیٹروجینیس مکسچر ہوتے ہیں.
ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी, कोलाइड्स आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की नजदीक होते हैं, करीब तर होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज। इसको झूठी सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज, जिससे हमारा मतलब है डिस्पर्स मीडियम, या जो हिस्सा थोड़ी मिकदार में होता है जिसको सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल साइज का जिक्र आया है। कोलाइड्स में जो पार्टिकल साइज होता है डिस्पर्स मीडियम का, उसका रेंज 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है। 1 से 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर। So particle size ranges from 1 to 1000 nanometer in diameter. इसके अलावा on standing means when allowed to stand, when remains untouched, when placed untouched for some time, जिसको बगैर डिस्टर्ब किए हुए हम थोड़ी वक्त के लिए रखते हैं। On standing, particles do not settle down at the bottom. अगर हम कोलाइड को बगैर हिलाई, बगैर डिस्टर्ब किए छोड़ देते हैं, तो इनमें जो जर्रात है, ये बिखरे हुए जर्रात, ये नीचे नहीं बैठते। जिस तरह सॉल्यूशन में पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम, यहाँ पर भी ऐसा है। जो डिस्पर्स मीडियम की जर्रात है, जो जर्रात मुंतशिर है, जो बिखरे हुए होते हैं, वो नीचे नहीं बैठते। इसके अलावा ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, अगर हम कोलाइड को फिल्टर करना चाहे तो ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन पार्टिकल्स स्लोली पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। ये जो रेड कलर जर्रात है, जिसको हम डिस्पर्स मीडियम बोलते हैं और जिसको हम सॉल्यूट भी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, तो ये फिल्टर पेपर्स की पोर से आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर फनल, जिसको हम टीफ बोलते हैं, इसमें हम रखते हैं फिल्टर पेपर और फिर इससे हम कोलाइड को गुजारें, तो कोलाइड पार्टिकल्स में डिस्पर्स मीडियम की जर्रात का जो साइज है, वो सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल के साइज से थोड़ा बड़ा होता है। तो ये गुजर तो जाते हैं फिल्टर पेपर के पोर से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम के साथ। सो पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड मीडियम passes slowly through the pores of the filter paper. अगर हम ऐसा करें कि इसको फिल्टर करना चाहे, अगर इस कोलाइड से हम इस डिस्पर्स्ड मीडियम की जर्रात, ये रेड कलर जो जर्रात है, इसको अलहदा करना चाहे, तो इसके लिए स्पेशल फिल्टर पेपर इस्तेमाल होते हैं, जिसको अल्ट्रा फिल्टर्स कहते हैं, जिसके पोर्स का साइज इंतहाई छोटा होता है, जिससे ये जर्रात नहीं गुजर सकते और ऊपर रह जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। अगर हम चाहें कि कोलाइड से डिस्पर्स्ड मीडियम की जर्रात को अलहदा करें। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय और विद नेकेड आई। कोलाइड में इस डिस्पर्स्ड मीडियम की जर्रात को आम नजर से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज छोटा होता है। जिस तरह सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट पार्टिकल को नहीं देख सकते आम नजर से मैग्नीफाइंग ग्लास के अलावा, लेकिन फिर फर्क यह है कि कोलाइड्स में हम इन जर्रात को पावरफुल माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं और सॉल्यूशन में नहीं देख सकते। इसके अलावा कोलाइड पार्टिकल स्कैटर लाइट बीम व्हेन पास थ्रू इट। जब यहां से लाइट का एक बीम गुजारा जाए तो ये लाइट के रेडिएशंस को स्कैटर करते हैं, मुंतशिर करते हैं। एंड दिस लाइट स्कैटरिंग फिनोमिनन इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। तो हम कोलाइड और सॉल्यूशन में आइडेंटिफिकेशन के लिए इस टेंडल इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्यूशन की जर्रात, जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, वो लाइट रेडिएशन को स्कैटर नहीं करती, लेकिन कोलाइड में ये डिस्पर्स्ड मीडियम की जर्रात
लाइट रेडिएशंस को स्कैटर करते हैं, इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो हम सोल्यूशन और कोलाइड में इस टिंडल इफेक्ट के जरिए फर्क वाज़ेह कर सकते हैं। इसके अलावा कोलाइडर पार्टिकल साइज इज लार्जर देन सोल्यूशन पार्टिकल साइज एंड स्मॉलर देन सस्पेंशन पार्टिकल साइज। सस्पेंशन का टॉपिक बाकी है, आखिरी टॉपिक है, हम उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये 3 कंटेनर्स है, एक में है सोल्यूशन, यहां पर लिखा गया है, आप जूम करके देखिए, सोल्यूशन है, ये कोलाइड है और यहां पर सस्पेंशन लिखा गया है। तो सोल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होता है, लेसर पार्ट ऑफ सोल्यूशन का मैं जिक्र कर रहा हूं, मतलब सोल्यूट मेरा मतलब है यहां पर इस पार्टिकल का साइज छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। फिर कोलाइड है, तो कोलाइड के पार्टिकल का साइज इनसे बड़ा होता है, और जो सस्पेंशन में लेसर पार्ट के जर्रात है उसका साइज सबसे बड़ा होता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि कोलाइड पार्टिकल साइज इज स्मॉलर इन साइज देन सस्पेंशन पार्टिकल साइज एंड इट इज लार्जर देन सोल्यूशन पार्टिकल साइज। अब आते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ कि कोलाइड की एग्जांपल या मिसालें क्या है। सबसे पहला एग्जांपल है मिल्क, जिसको हम दूध बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल है ब्लड सीरम। तीसरा एग्जांपल है सल्फर पाउडर व्हेन एडेड इनटू वाटर, वाटर मॉलिक्यूल स्कैटर द सल्फर पार्टिकल्स। इसके अलावा स्टार्च, निशास्ता पार्टिकल इन वाटर, अगर हम पानी में निशास्ता पाउडर को डालते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल निशास्ता के छोटे छोटे जर्रात को बखेरते हैं, स्कैटर करते हैं, इससे भी एक कोलाइड बनता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल जेलीज भी है। कोलाइड के बहुत सारे अक़साम है। एक और एग्जांपल है इंक, और इंक मिसाल है सॉलिड इन लिक्विड। तो कोलाइड सॉलिड पार्टिकल अगर डिस्पर्स मीडियम वाले है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, फॉर एग्जांपल वाटर है, तो इसको सॉलिड इन लिक्विड कोलाइड बोलते हैं। इसके अलावा पेंट, रंग एक और एग्जांपल है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड ये डिस्पर्स्ड होते हैं। ब्लड सेल्स डिस्पर्स्ड इन प्लाज्मा, ये भी कोलाइड है। क्रीम, जिसमें फैट पार्टिकल्स इन वाटर वो डिस्पर्स्ड होते हैं, तो क्रीम भी कोलाइड्स का एक एग्जांपल है। सो स्टूडेंट्स, ये था कोलाइड्स, उसका इंट्रोडक्शन, definition and then properties of colloids. Next time I will be back with another topic, suspension. Thanks a lot for watching the video. I am getting aside, मैं साइड पे हो जाता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।